السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. Respected audience, my beloved brothers, friends and my dear colleagues. First of all, I would like to wish you a very happy Republic Day. Today in this short speech, I would like to draw your attention to a very important topic, and this is the role of Muslims in the freedom struggle of India. My dear friends, today it is 26th January 2022. We the Indians celebrate this day as the Republic Day of our nation. We celebrate this day with full zeal and enthusiasm. But do you know why do we celebrate 26th January as the Republic Day of our nation? Because on 26th January 1950, the Constitution of India fully came into effect, expressing the happiness we the Indians. Since that day, we celebrate 26th January as the Republic Day of our nation. میرے دوستو، میں اس تقریر کے اندر اپنے وطن عزیز ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کے کردار، ان کے سیکریفائسز، ان کے ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہماری نسل، ہمارے نیو جنریشن ان کے بارے میں ان کی واقفیت ہو، ان کے نالج میں یہ سارے چیزیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو قوم اپنے آبا اجداد، اپنے اینسسٹرز کے پاسٹ اور شاندار ماضی کے سلسلے میں ناواقفیت رکھتی ہے، انہیں ایک مردار قوم کہا جاتا ہے. میرے دوستو، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے آبا اجداد کے، ہم لوگ اپنے اینسسٹرز کے ہسٹری کو، ان کے شاندار ماضی کو اچھی طرف سمجھے. ہم اچھی طرف سمجھ کر ہم بھی اپنے اندر وہ جذبات، وہ ایموشن ہم بھی اپنے اندر پیدا کرے، جیسے ان لوگوں نے ہمارے ملک کے خاطر قربانیاں دیے تھے، سیکریفائسز دیے تھے، شہادتیں حاصل کیے ہیں. ہمیں بھی اگر ہم لوگوں کو کبھی ایسے ضرورت پڑے تو یہ ہمت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. اس لیے میرے دوستو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آبا اجداد، اپنے اینسسٹرز کے ہسٹری کے بارے میں ہم لوگ سمجھے، ہم ان کو اسٹڈی کریں، ہمیں ان کے بارے میں پکا نالج ہونا چاہیے. میرے دوستو، آج سے تقریباً 250 سال پہلے ہمارے اس ملک کے اندر 7 سمندر پار کر کے گورے لوگ ایسٹ انڈیا کے کمپنی کے نام سے ہمارے ملک کے اندر آئے اور ہمارے ملک کے اندر اپنا قبضہ کرنا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے قبضہ کرتے کرتے پورے ملک کو وہ لوگ اپنے قبضہ میں لے لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی. میرے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کی حکومت اتنی بڑی تھی، اتنے ملکوں میں ان کی حکومت تھی. یہ برٹش لوگوں کی حکومتیں یہ اتنے سارے ملکوں کے اندر تھی کہ اگر ایک ملک کے اندر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرے ملک کے اندر سورج طلوع ہو جاتا تھا. اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی طاقتور لوگ جب ہمارے ملک کے اندر آئے اور ہمارے ملک کو بھی اپنے قبضہ کے اندر لے لیا، میرے دوستو، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ایک بہت ہی ہمت والے اور بریو، ایک گریٹ لیڈر ٹیپو سلطان، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈال دیا تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے اتنی طاقتور
गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपने कदम उठाया। उन्होंने चारों तरफ खतूत भिजवाए और दूसरे लोगों के हेल्प से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जिहाद शुरू किया, जंग लड़ी गई और अल्टीमेटली 1799 के अंदर उनको शहीद कर दिया गया है। ये टीपू सुल्तान पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो इतने भारी थे, वो आप इससे समझ सकते हैं कि ब्रिटिश कमांडर जनरल हैरिस जब वो टीपू सुल्तान जब शहीद हो गए तो उनके डेड बॉडी के करीब में वो जब इंस्पेक्शन करने के लिए आया था तो उनके डेड बॉडी के करीब में खड़े होकर और खुशी में ये ऐलान किया कि आज से इंडिया हमारा हो गया, आज से ये मुल्क हमारा है। मेरे दोस्तों, जब तक वो टीपू सुल्तान जिंदा थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुल्क को अपने होने का वो ऐलान करे। लेकिन जब वो शहीद हो गए तो वो जनरल हैरिस वो ऐलान करता है कि आज से इंडिया हमारा हो गया है, आज से ये मुल्क हमारा हो गया है। मेरे दोस्तों, जब ये ब्रिटिश लोग हमारे मुल्क के अंदर आए तो सबसे पहले उन लोगों ने हम लोगों को, इंडियंस को और ख़ास तौर से मुसलमानों को गुलामी के ज़ंजीरों में बांधना शुरू किया और हमारी आज़ादी को छीन लिया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया और इंडियंस के ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए। मेरे दोस्तों, लेकिन हमारे इंडियंस और ख़ास तौर से मुसलमान ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए लगातार कंसेक्यूटिवली इनके साथ जंगें लड़ी गई, उनके साथ लड़ाई किया गया, इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए, इनके अगेंस्ट में मूवमेंट किए गए हैं और बिल आखिर सारे लोग, सारे इंडियंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने सारे इंडियंस हैं, सब लोग इकट्ठा होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे जंग लड़े, यहाँ तक कि उन लोगों को इंडिया में रहने नहीं दिया। वो लोग मजबूर हुए, इंडिया को छोड़ के जाने पर मजबूर हुए। मेरे दोस्तों, आज हम लोग इस मुल्क के अंदर फ्री, आज़ाद होके हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग जहाँ भी चाहे जा सकते हैं, लेकिन वो लोग जब ब्रिटिश हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत कर रहे थे, जब उनके रोल यहाँ तक कि हमारे सारी चीज़ों को उन लोगों ने छीन लिया और ख़ास तौर से इन लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुँचाया। कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया में आने से पहले सिर्फ दिल्ली के अंदर 1000 से ज़्यादा मदरसा था, लेकिन उन लोगों ने इन सारे मदरसों को बंद करवा दिया। इन लोगों ने इस्लाम और मुसलमान को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश किया। लेकिन मेरे दोस्तों, मुसलमान ने हज़ारों हम उलमा ने अपने जान कुर्बान किए, शहादत हासिल किए, खून के नहरे बहाए इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए। कितने सारे उलमा को फांसी दिया गया, उनको जेल में बंद किया गया। ये एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। मेरे दोस्तों, हमें ये सारे चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हमें स्टडी करके, हमें मुताला करके, हमें सही हिस्ट्री को, हमारे मुल्क की आज़ादी के सही हिस्ट्री को हमें समझना चाहिए। तब जाके हम लोग इज्जत के साथ हम अपने इस मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज हमें ये कहा जा रहा है कि हम लोग इंडिया के है ही नहीं, हम लोग फॉरेनर्स हैं। मेरे दोस्तों, ये वही लोग कह सकते हैं जिनको इंडिया के हिस्ट्री नहीं मालूम, जिनको फ्रीडम स्ट्रगल के, इंडियन फ्रीडम के बारे में जिनको नहीं मालूम। मेरे दोस्तों, इंडियन फ्रीडम में मुसलमानों ने जितने मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया है। मुसलमान तो शुरू ही से इन
ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जिहाद कर रहे थे, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। कितने सारे लोगों को फांसी में लटकाया गया है, जेल में बंद किया गया, हमारे उलमा को फांसी दिए गए, हमारे उलमाओं को जेल में बंद किया गया। मेरे दोस्तों, ये सारे लोग ये हमारे देश को, हमारे इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपने ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, शहादतें हासिल किए हैं। इसके बावजूद अगर हमें ये कहा जाए कि हम इस मुल्क के नहीं हैं, तो फिर ये बहुत गलत है, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। मेरे दोस्तों, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए हमारे उलमा ने, हम कुछ बड़े बड़े उलमा के नाम यहाँ आपको याद कराते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैहि, शाह इस्माइल शहीद, शाह अहमद रशीद अहमद गंगोही वगैरह बहुत सारे उलमा ने अपने पूरे ज़िंदगी को मुल्क के आज़ादी के लिए वक्फ कर दिए थे, और ये लोग हर वक्त मुल्क को आज़ाद करने के फ़िक्र में रहते थे, इसलिए तकलीफ़ें उठाए। मेरे दोस्तों, आखिर में जब मुल्क के सारे लोग मिलजुल कर, एक होकर, यूनाइटेडली, जब सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे बिरादरी के जितने लोग हैं, सब मिलकर सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह, वो सारे लोग मिलकर जब हम सब लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छड़े, तब जाके वो लोग मजबूर हो गए, उस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हुआ, और इसके नतीजा में ये मुल्क आज़ाद हुआ। इंडिया आज़ाद हुआ, और हम लोग आज आज़ादी के साथ इस देश में रह रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर आज भी हम लोग जिस तरीके से यूनाइटेडली हम लोगों ने, हमारे इंडियंस ने इस मुल्क को आज़ाद कराया है, आज भी अगर हम इसी मोहब्बत के साथ, इसी यूनिटी के साथ, इसी ब्रदरहुड के साथ अगर हम इस मुल्क में रहेंगे, तो हमारे मुल्क तरक्की करेगा, हम लोग अमन व अमान, सुकून और चैन के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, तो फिर हमारे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है, और हम लोग इज्जत के साथ, चैन और सुकून के साथ हम लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, हम लोग अपने हिस्ट्री को समझे, अपने हिस्ट्री को पढ़े, और अकॉर्डिंगली हम लोग भी, हमारे अंदर भी ऐसे जज्बा पैदा हो, अगर कभी हमें अपने मुल्क के लिए अपने जान को कुर्बान करना पड़े, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हो, खून बहाने की ज़रूरत पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हो। मेरे दोस्तों, इसलिए ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के साथ हमारे मोहब्बत है। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। हम इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपने तकरीर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।